Hi everyone, welcome back you all in my next lecture number 3 for probability and mathematical statistics. And today's topic is, I already suggest you that I follow the Saucer book. ठीक है, जो बुक का फर्स्ट 2 चैप्टर के लिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड. Chapter number 3, today I'll try to cover everything. Chapter 3 name is Random Variable and Distributive Function. Random Variable and Distribution Functions. Okay, this is the today's topic. तो मैं प्रसन्न साहू सर का बुक फॉलो कर रहा हूँ. तो ये बुक बहुत ही इजी टू रीडेबल है. तो पहली तो बात है, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल. पहले तो बात है रैंडम वेरिएबल है क्या. रैंडम वेरिएबल आरवी शॉर्ट में, ठीक है. रैंडम वेरिएबल, ए रैंडम वेरिएबल इज ए मैथमेटिकल फंक्शन A random variable is a mathematical function that maps each possible outcomes possible outcome from a random experiment to a distinct real number. Real number. Okay, that is the definition of random variable, and we denote it by कैपिटल एक्स. यू कैन से, ऐसा नहीं है कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यानी कैपिटल लेटर से हम लोग वो रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं. ये नोटेशन मान लो, ठीक है. वी प्रेफर कैपिटल एक्स. ओके, नाउ डेफिनेशन. ये नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है ना. द सेट x in R such that x equal to xs, जहां पे जो s है वो इन सैंपल स्पेस. ओके, दैट स्मॉल s इन सैंपल स्पेस इज कॉल्ड the space of the random variable x. Space of the random variable x. Okay, it is denoted by Rx for रैंडम वेरिएबल x. x के लिए हम लोग इसको Rx से डिनोट करते हैं. फाइन, ओके. अच्छा, वन एग्जाम्पल इज देयर. एग्जाम्पल, see
this example is given that consider the coin tossing experiment. Okay, consider the coin tossing experiment. Coin tossing experiment. Okay, construct a random variable x for this experiment. Okay, चलेगा. What is the space of this random variable x? Question is, what is the space of this random variable x? Okay, this is the question. तो इसको कैसे किया जाएगा? सी देखो, हमारे पास जो सैंपल स्पेस एस वो क्या है, कॉइन टॉस करोगे तो आइदर हेड मिलेगा और टेल मिलेगा. गॉट इट? आइदर हेड मिलेगा और टेल मिलेगा. नाउ लेट अस डिफाइन a function from sample space S to into the set of reals as x of head is 0, x of tail is 1. Okay, in this way. ठीक है. Then x is a valid map and thus by our definition of random variable, it is a random variable for the coin tossing experiment. Coin tossing experiment. Okay, the space of this random variable is Rx equal to 0, 1. Okay, Rx equal to 0, 1. Okay, fine. Okay. नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? ये रैंडम वेरिएबल देख लिया और द स्पेस ऑफ द रैंडम वेरिएबल वी डिस्कस्ड. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. नाउ द थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके, definition. Let Rx be the space of random variable x. Then the function if Rx2 real number are defined by fx equal to
is called the probability density function. ब्रैकेट शॉर्ट में लिख दिया PDF of x. Okay, I want to repeat this definition again. See, Rx क्या है? स्पेस ऑफ रैंडम वेरिएबल x. फाइन. देन हम लोग f Rx टू r डिफाइन कर रहा है कैसे ना, fx इक्वल टू px इक्वल टू x. ठीक है, एट x प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो दैट इज fx एंड इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ये डिस्क्रीट केस है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ओके ओके ओके. नाउ दिस वन और PDF. ओके, एग्जाम्पल तो आ जाएगा बाद में, कोई बात नहीं, वो बाद में आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये हो गया PDF हो गया. अच्छा, PDF के बाद हम लोग देखेंगे कि PDF के ऊपर कुछ क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होता है. मतलब उसको मैं थ्योरम टाइप में लिख रहा हूं. इसको मान लो थ्योरम है. थ्योरम क्या है? इफ x is a discrete random variable, discrete random variable with space Rx and probability density function fx, then the following things happen. fx जो है वो नॉन नेगेटिव है फॉर ऑल x इन Rx एंड fx का जो सम होगा जब स्पेस ऑफ रैंडम वेरिएबल से x ले रहा हूं, उनका सम क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, दिस वन द थ्योरम. ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम इज देयर. ओके, so now using this theorem, one example is there. Example, see, example is if the probability of a random variable x with space Rx equal to is given by fx. PDF given by this 2x minus 1. Then what is the value of the constant k? Then what is the value of k? ये कैसा होगा, मतलब कैसे इसको सॉल्व करोगे? 1 इक्वल टू x in Rx, already we know according to the point B of theorem, given theorem. So from this we can write this like this: Rx fx is k into 2x minus 1. From this we can write x equal to the discrete case, x equal to 1 to 12 k 2x minus 1. Now you can simplify and get the final result. कैसे मिलेगा? 1 equal to 2 k, x का वैल्यू है 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट करके प्लस 12 माइनस 12 के. ठीक है, 12 माइनस 12 के. यहां से आपको मिलेगा 1 इक्वल टू 2 के 12 n इंटू n प्लस 1 by 2
माइनस 12 के। तो देखो ये कट गया, तो ये बेसिकली होगा 1 इक्वल टू 12 के से 12 प्लस 1 माइनस 1, दैट इज बेसिकली 1 इक्वल टू 144 के, दैट इज इम्प्लाइज के इक्वल टू 1 बाय 144, दैट इज आंसर। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ये के का वैल्यू क्या होगा 1 बाय 144, ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट वन डेफिनेशन इज देयर, डेफिनेशन इज what is the cumulative distributive function, the distribution function fx of a random variable x is defined as, कैसे डिफाइन करके रखा, एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स लेस और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स रियल नंबर, ओके, दिस इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन थ्योरम। इफ x is a random variable with the space Rx, then fx equal to ft for x in Rx, okay, for x in Rx, okay, you need to know this theorem, definition and theorem, okay. What is the cumulative distributive function? You can write this in the short form CDF. Last one PDF, probability distributive function. This one CDF, cumulative distributive function. And regarding this definition, we need to know about the below theorem. Okay. Okay. Now, theorem. This one very important theorem, you need to know what is the statement of the theorem. Theorem state that let x be a random variable with cumulative distributive function CDF, you can write fx, okay. Then cumulative distributive function satisfies the following. क्या क्या फॉलो कर मतलब सेटिस्फाई करते हैं, ए पॉइंट 1 इज एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो 0 होगा, पॉइंट 2 इज cumulative distributive function at infinity is 1, and point number 3 is fx is an increasing function. Fx is an increasing function, that is if x less than y, then fx less than fy for all reals x y, okay. This theorem is very important, try to remember always. क्या बोल रहा है ना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एट माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, एट इन्फिनिटी 1 होता है, एंड fx का जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब बेसिकली
इफ ए लेस देन बी होता है तो एफ ए लेस देन और इक्वल टू एफ बी होता है, दैट इज इट। ओके, ये है थ्योरम। ओके, you need to you need some basic idea about this। okay, सॉरी ये लार्ज हो गया कैसे, ठीक है कोई नहीं, इसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है अभी तो सही है, हाँ सही है। नाउ हम लोग जा रहा है नेक्स्ट थिंग, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नाउ कॉन्टिन्यूअस केस, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल केस के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा होता है। सी कॉन्टिन्यूअस होगा तो सीधा बात है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स सेटिस्फाइज, क्या क्या सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइज। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अच्छा इसको पॉइंट नंबर 1 ही दे देते हैं, एफ एक्स डी एक्स इसका वैल्यू 1 होगा। एंड पॉइंट नंबर 2, इफ ए इज an event then PA equal to fx dx। okay, if A is an event then Px is integration fx dx। okay, fine। अच्छा, now example, is the real valued function if R2R defined by fx equal to like this 2x power minus 2, if 1 less than x less than 2, 0 otherwise। ठीक है, it is a probability density function for some random variable x। is it true? ठीक है, let's check। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू चेक करेंगे बेसिकली। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, सो एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू ऐसे डिफाइन है, तो मतलब क्या ना 1 to 2 पे क्या होगा 2x पावर माइनस 2 dx, बाकी के लिए जो जो पार्ट है मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक उसका वैल्यू 0 dx है, प्लस 2 टू इन्फिनिटी तक उसका वैल्यू 0 dx है। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैसा होगा ना 2x स्क्वायर मीन्स 1/x, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 to 2, ऐसा दिखा जाए तो माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/1, तो बेसिकली 2 into 1 minus 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। देखो इसका वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये मिल गया। और क्या दिखाना है, ये दिखा दिया, और दिखाना है एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, सी एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, ये दिखाना है। अच्छा, इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, ग्राफ कैसा दिखेगा,
ये देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, चलेगा। इधर x है और इधर कौन है, y मीन्स fx, ओके fx है। तो इधर x है, fx है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही टाइप का होगा ना, मतलब ये 1 मानो, ये है और ऐसा टाइप का आएगा, कुछ ऐसा टाइप का आएगा, ठीक है, ऐसा टाइप का आएगा डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन, ओके। तो यहां से अकॉर्डिंग टू द ग्राफ क्या बोल सकते हैं, सिंस द डोमेन ऑफ f is the interval 0,1, द डोमेन क्या है, उनका जो डोमेन है वो क्या है, द इंटरवल 1,2 नॉट 0,1, राइट, 1,2, दैट इम्प्लाइज f इज नॉन नेगेटिव। क्यों ऐसा ना, देखो पहले तो इन दिस डोमेन f का वैल्यू ऐसे डिफाइन करके रखा 2x⁻², और x का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। इसका मतलब ये जो f का वैल्यू है, f का जो वैल्यू है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। सो वी आर डन, सो बोथ आर डन, देयरफॉर यस it is true, so we are done, okay, this is the approach, okay, you need to follow this approach only, easy question, just try to follow this one, okay। next one thing we can discuss, that is I think okay, let me check, see, अच्छा एक डेफिनेशन देखो, एक डेफिनेशन, let fx be the probability density function of continuous random variable x, okay, probability density function of the continuous random variable x, the cumulative distributive function fx of x is defined as in this way, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो कोई बात नहीं, माइनस इन्फिनिटी से x तक जाएगा जो कि ft dt होगा, t का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से x तक, ओके, दैट इज फाइन, राइट, ओके, दैट इज फाइन। अच्छा, वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, dy dx of fx means cumulative distributive function is called fx, probability density function, okay। ये कब होगा, इन केस ऑफ continuous random variable, continuous random variable distributive function, right, distribution function, जहां पे fx कौन है, fx क्या है हमारा, क्यूमुलेटिव, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एंड fx ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ओके।
ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है, ठीक है, चलेगा, फाइन। अच्छा, इसको प्रूव करना है, मैं प्रूव कर देता हूँ। ये जो रिजल्ट है इसको प्रूव करना है तो प्रूव कर देता हूँ। प्रूफ बहुत ही आसान है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ टी डी टी। यहाँ से आप देखोगे तो क्या होगा, एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 0, दैट इज एफ एक्स इंटू 1, दैट इज एफ एक्स। सो वी आर डन, ठीक है, इतना सा प्रूव करना था। ये क्या है, ये जो फॉर्मूला मैं यूज किया हूँ क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ओके। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ठीक है, फाइन। अच्छा, example, what is the probability density function, what is the probability density function of random variable whose cumulative density distribution function is fx इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स, जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। क्वेश्चन क्या है, ये है। सो कैसे फाइंड करोगे ना, एफ एक्स इक्वल टू यू नो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दैट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 1 बाई 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो फ्रॉम दिस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा ना, ई पावर एक्स बाई 1 प्लस ई पावर एक्स। तो यहाँ से आप कर सकते हो 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ऊपर में ई पावर एक्स बाई 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। This is the scenario. From here you can write in this way, e power x take common, e power minus x प्लस 1 इनका होल स्क्वायर ऊपर में e पावर x। यहाँ से आप लिख सकते हो e पावर माइनस एक्स बाई 1 प्लस e पावर माइनस एक्स इनका होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द आवर फाइनल एफेक्ट्स, ओके। वेरी सिंपल था, बस सॉरी वेरी सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट one theorem is there, next one theorem is there, let x be a continuous random variable whose CDF is fx, then followings are true। cumulative distributive function दिया है, distribution function, then following are true, followings are true। क्या क्या ट्रू है, फर्स्ट तो है p ऑफ x लेस देन x इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा है p ऑफ x ग्रेटर देन x इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स, तीसरा है p ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है a लेस देन x लेस देन b इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। यू नो f कौन है, f हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x एफ एक्स हो जाता है, ग्रेटर देन होगा तो 1 माइनस एफ एक्स होगा,
x इक्वल टू x पॉइंट पे बोला 0 होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, राइट। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के क्या होगा भाई, 0 ही होगा, ठीक है ना। ओके फाइन, दैट्स द सिनेरियो. So you need to know, you need some idea about this statement, right? Because these are important, you need to use all those things in later, in future, everywhere you need to use these concepts. What is distribution function for discrete case, continuous case, probability density function, cumulative distributive function, those things are very common terms you need to use in future. Okay, I think this much for today. Hopefully you I think you are helpful from this video lecture, एंड आपको लगे कि ये वीडियो लेक्चर आपका कोई दोस्त के लिए हेल्पफुल होगा, कोई जूनियर सीनियर के लिए भी हेल्पफुल होगा, प्लीज शेयर विद देम so that my channel subscriber also increase. Thank you.